Okay, perfect. Thank you very much. So let's start. Today is the important webinar on GSTR 9 and 9C for the financial year 23-24. First point. As per notification number 14/2024 Central Tax, if you are a registered person and your aggregate turnover is less than 2 crore in 23-24, then you are exempted. If it is more than 2 crore, you need to file GSTR-9, which is annual return. And if your aggregate turnover is more than 5 crore, then GSTR-9C, self-certified reconciliation statement. Having said that, what is the meaning of aggregate turnover? I hope you are ready with the paper, pen, and pencil so that you can take down the important pointers today. So aggregate turnover to be calculated on permanent account number basis, PAN basis for all India. So if you're having 4 registration, sum total of turnover on PAN basis, and aggregate turnover includes your taxable supplies, exempted supplies, export, interstate, except CGST, SGST, UTGST, IGST, and compensation cess. So this is what the meaning of aggregate turnover. Having said that, what is the form? What are the tables which are mandatory or optional? We have to look at this particular table and then we have to move forward. So I will show you one table. I have made crisp table with a comparison of 22-23 versus 23-24. What all tables are mandatory, what all tables are optional, where it is getting auto-calculated or auto-populated. We are going to showcase that particular form to you. Having said, now there are two broad perspectives when we are talking about GSTR 9 and 9C. One is the outward supply and another one is inward supply corresponding input tax credit. Let me share that particular sheet which I'm referring to, and we are going to discuss this GSTR 9 and 9C, all the relevant tables one by one, and discuss the comparison from 22-23 versus 23-24. Let me share my screen first. Hope this screen is visible to all of you. All of you can see the screen which is coming. Okay. All right. So having said, look at this table which I have created. I'm doing the comparison from 22-23, what was there and what need to be followed in 23-24. I'm just picking up the relevant table, which is important one. First is outward supply. So in outward supply, what is important? Outward supply of 23-24 shown in a period 23-24. Then which relevant table of GSTR 9 you need to pick up? Table 4, where you are paying the taxes. Table 5, where you are not paying the taxes. And table 9, corresponding taxes are being paid. 23-24 key outward supply, even advance and inward supply on which RCM applicable. 23-24 की अगर आपने 23-24 में दिखाई है
तो कौन सी रिलेवेंट टेबल होगी GSTR 9 की? टेबल 4, टेबल 5 जिसमें आप आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हैं बट टैक्स चार्ज नहीं करते, and corresponding taxes are being paid through table 9. Another situation is outward supply of 23-24 is shown in a period April to October 24. So October 24 return is the important one and filed by 30th November. So if there is any outward supply or upward adjustment by way of debit note upward, then table 10 of GSTR 9. If it is downward credit note, it is for 23-24 but shown in a period April to October 24. By 30th November 2024, and there is downward adjustment, then table 11. And corresponding impact of table 10 and 11 is being shown in table 14 of GSTR 9. So what is the change if we look at the comparison 22-23 versus 23-24? So it is for your easy understanding. Look at all these tables like table 4A where B2C supply need to be furnished. It was mandatory in 22-23 and it is mandatory in 23-24. And this particular seat is going to be available to each one of you. After this presentation, this seat would be given to each participants, and those who are watching through YouTube mode, it would be given in the description box. So you can download this particular seat for understanding sake, for your preparation of GSTR 9 and 9C. What is the table which got inserted? I have colored. So table 4G1 is a new table relevant for 23-24. In this table, you will include the supply on which e-commerce operator is liable to pay GST under section 9 subsection 5, like restaurant, Swiggy, Zomato. So they are deemed supplier. So they will furnish this outward supply here and pay the taxes. This is the one change. So whatever relevant table which we have seen last year is applicable for 23 and 24. When we go to table 5, 23-24 outward supply shown in 23-24, but tax is not payable. So everything is same except table 5C1. And here the supplier, restaurant fellow, let's say Haldiram, and Haldiram supply is being supplied by Zomato. Zomato will disclose the outward supply in 4G1 and Haldiram will show in table 5C1. So this is the two change in the disclosure where details need to be furnished respectively. No other change you will find in outward supply. So table 4, 5, 23-24 outward supply shown in 23-24. And corresponding taxes are being paid through table 9. Through table 9. Any upward adjustment 23-24 but shown in a period of April to October 24, table 10. Any negative amendment pertaining to 23-24 but shown in April to October 24, table 11, and corresponding impact of 10 and 11 will go to table 14, differential tax paid on account of declaration in table 10 and 11 above. So this is GSTR 9 pertaining to outward supply. When you go to GSTR 9C, table 5 is the relevant one. In table 5A, you will pick up the turnover GST wise. So if we are having 4 registration,
So your aggregate turnover would be sum total of all 4 registration. But यहाँ पे आप क्या पिक करेंगे? यहाँ पे turnover per registration under GST law. So 5A, as per audited financial statement. Now here the catch. Sometime you are not getting branch account audited. It is only audited at the corporate level. Then a trial balance must be prepared, which should be considered and which is being considered for consolidation purpose, can be countersigned by your, that saying audited financial statement. So that should have authenticity that this is the trial balance considered for the consolidation purpose at the head office for audited purpose. So that turnover need to be mentioned in table 5A. But now look at table 5B, C, D. All are optional. O stands for optional. So you need not require to mention separately. The sum total of table number 5B to 5N can be clubbed with 5O, and this is mandatory. So it is as per you. If you want to mention, you can mention, otherwise optional, and that can be clubbed in 5O. Then you get annual turnover as per above adjustment. Then you need to compare with the GST turnover coming from GSTR-9. Quite obvious, after preparation of GSTR-9, you will prepare the 9C. So you got book turnover versus GST turnover. So there may be a possibility it is not reconciled. If it is unreconciled, then definitely you're going to give the reason in table 6 why it is not reconciling. So we will discuss some scenarios when it is not reconciling. So if there is non-reconciliation, reason to be recorded in table 6. Table 7 talks about reconciliation of taxable turnover under GST. So you have to pick up the GST turnover and then bifurcate in this manner, and then this reconciliation need to be furnished. Wherever it is mandatory, you need to mention accordingly. If there's any reason for non-reconciliation, then that reason need to be recorded in table 8. Table 9 talks about reconciliation of rate-wise liability. So rate-wise, broadly 5%, 12%, 18%, 28%. You must do the reconciliation rate-wise liability and amount payable thereon. So region for unreconciled payment of tax, if it is not reconciling, region to be recorded. And table 11 talks about additional amount payable but not paid because of the region quoted in table 6, 8 and 10 need to be recorded in table 11. So outward supply में सिर्फ 2 टेबल नई आई, सब टेबल 4G1 एंड टेबल 5C1, और कोई चेंज नहीं है। जो आपने 22, 23 में देखा वो 23, 24 में एप्लीकेबल है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम कुछ पॉसिबल सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। आप भी कोशिश कीजिए अपनी तरफ से कि उसके आंसर क्या होने चाहिए। मैं आपको आंसर भी दूंगा, बट दीज आर द पॉसिबल सिनेरियोज वेयर यू वुड बी लुकिंग फॉर द आंसर। सो पहले आप भी कोशिश कीजिएगा। एंड मैंने जैसा कहा है, द सीट वुड बी अवेलेबल टू ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, बट यू ट्राई फॉर द टाइम बिंग, जब आप इसको देख रहे हैं इस वेबिनार को, तो कोशिश कीजिए कि हम इसका आंसर करें। तो मैंने इसको यहां टेबल 5 के बाद ये मल्टीपल प्रैक्टिकल सिनेरियोज तैयार किए हैं। अब आप लोग देखिए और खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपकी आउटवर्ड सप्लाई है 23-24 की, जिसके लिए हम GSTR-9 भर रहे हैं, और वो आउटवर्ड सप्लाई 23-24 की आपने GSTR-1 और 3B 23-24 में दिखा दिया। तो कौन कौन सी टेबल आपकी GSTR-9 की रिलेवेंट होंगी? क्वाइट ऑब्वियस है, टेबल 4, 5 आपके GSTR-1 से ऑटो पॉपुलेट होती है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स टेबल 9 में जाता है। तो ये मैंने यहां पे मेंशन भी कर दिया 4, 5 एंड 9। यानी इस टेबल को अगर आपको कल समझना है
तो आपको यहां से मालूम पड़ जाएगा, यानी आंसर भी मैंने आपको दे दिया। दूसरा सिनारियो, आप कोशिश कीजिए, वंस अगेन आई एम लुकिंग फॉर द आंसर, आप कोशिश कीजिए, आंसर तो मैं आपको दूंगा। मान लीजिए कोई आउटवर्ड सप्लाई जो 23-24 की है, या उसका एडजस्टमेंट 23-24 का है, लेकिन आपने अप्रैल टू अक्टूबर 24 पीरियड में दिखाया, टिल 30 नवंबर 2024। तो कौन सी रिलेवेंट टेबल अपवर्ड जिसमें एडजस्टमेंट प्लस है, कौन सी टेबल रिलेवेंट होगी? रिलेवेंट टेबल वुड बी टेबल 10 एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स होगा टेबल 14 के जरिए। तीसरा सिनारियो, अगर डाउनवर्ड एडजस्टमेंट है 23-24 का, बट आपने दिखाया अप्रैल टू अक्टूबर 24 में, तो कौन सी रिलेवेंट टेबल आप पिक करेंगे? टेबल नंबर 11 एंड टेबल नंबर 14 जो इंपैक्ट आएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर आप जल्दी से क्विकली चैट बॉक्स में यस भी कर देंगे तो मुझे यह लगेगा कि हाँ आप समझते जा रहे हैं, यस करते जाइए। एम आई क्लियर? बस यस करते जाइए तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, चलिए अब आते हैं दूसरे सिनारियो पे। अब हमें रिकंसिलिएशन करना है। वी हैव टू डू रिकंसिलिएशन। बुक टर्नओवर वर्सेस जीएसटीआर 1 में आपने क्या दिखाया, और करस्पॉन्डिंगली आपने 3B में क्या दिखाया। 3B से हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। सो स्लोली करेंगे और आपको समझना है और आंसर करना है। पहली सिचुएशन, मान लीजिए बुक में टर्नओवर 100 रुपए है। आपकी बुक की टर्नओवर 23-24 100 रुपीज। आपने 1 में भी 100 रुपीज दिखाया, बट 3B में आपने 80 रुपए दिखाया, यानी 80 रुपए पे टैक्स पे किया। तो क्वाइट ऑब्वियस आपने 20 रुपए पे कम टैक्स पे किया है। तो अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पेबल खड़ा हो जाएगा टेबल 9 में। उसको पे करना पड़ेगा थ्रू DRC-03। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर जब DRC-03 के जरिए हम पे करते हैं तो क्या ई क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हैं, या वी हैव टू पे कंपल्सरली थ्रू ई कैश लेजर? इट कैन बी पेड थ्रू ई क्रेडिट लेजर ऑल्सो। सेकेंड सिचुएशन, बुक टर्नओवर 100 रुपीज, GSTR-1 में आपने 80 दिखाया है, और 3B में आपने करेक्ट टैक्स पे किया है 100 रुपीज 100 के ऊपर। सो 3B में टैक्स तो करेक्ट गया है, लेकिन GSTR-1 में 80 दिखाया था। तो 9 भरते वक्त कुछ करना है क्या? ऑफ कोर्स, टेबल 4 को आप एडिट करेंगे जो GSTR-1 से ऑटो पॉपुलेट हो रही है, और 80 को 100 कर देंगे। देन कॉरस्पॉन्डिंगली जो टैक्स आपने पे किया है टेबल 9 में, वो आपके पेबल से मैच कर जाएगा। सो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। इफ क्लियर, कैन आई से यस? आप लोग यस करेंगे एक बार? हाँ, तो जिससे ये रहेगा कि हाँ आप समझ रहे हैं, तो मैं थोड़े बहुत यस देख के भी आगे बढ़ जाऊंगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट सिचुएशन आप देखिए, नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। दिल्ली टू महाराष्ट्र इंटर स्टेट सप्लाई थी, IGST की लायबिलिटी थी, बट आपने गलती से CGST एंड SGST लायबिलिटी दिखा के पे कर दिया। एम आई राइट? IGST की लायबिलिटी, और आपने क्या किया, C&S करके पे कर दिया, और अब आप 9 भर रहे हैं। तो आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट बोलेगा आपकी IGST की लायबिलिटी थी, पर आपने पे क्या किया, C&S। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में मैं आपको एक सजेशन देता हूं, वो सजेशन देख लीजिए आप। टेबल 4 में जाइए, पहले IGST की लायबिलिटी क्रिएट कीजिए, प्लस कर लीजिए IGST लायबिलिटी, क्योंकि वही लायबिलिटी थी आपकी, और माइनस कर दीजिए C&S जो आपने गलती से पे कर दिया है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंपैक्ट जाएगा टेबल 9 में। टेबल 9 में IGST पेबल आ जाएगा, और C&S एक्स्ट्रा पेड आ जाएगा जो रिफंडेबल होगा आपको।
तो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू वुड बी कि आईजीएसटी आप पे करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट लगेगा क्या? हो सकता है ट्रांजेक्शन आपकी अप्रैल 23 की थी, आप दिसंबर 24 में जीएसटीआर 9 फाइनल कर रहे हैं और आज की डेट में आईजीएसटी पे करेंगे आप, तो इंटरेस्ट लगेगा क्या? नो इंटरेस्ट, नहीं लगेगा इंटरेस्ट। और सी एंड एस जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है उसका आप रिफंड क्लेम करेंगे विद इन 2 years फ्रॉम द डेट आईजीएसटी लाइबिलिटी पेड। जिस दिन आप आईजीएसटी लाइबिलिटी पे करेंगे वहां से 2 साल। और ये सारी बातें अगर आप देखना चाहते हैं कहां पे है, सर्कुलर नंबर 162 dated 25th of September 21। I hope this part is also clear. Can I see yes in a chat box कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई? ये yes तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जस्ट ए मिनट, स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन। स्पिल ओवर क्या होता है मालूम है? जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल। Some turnover of 22-23 हो सकता है आपने अप्रैल टू अक्टूबर 23 में दिखाई होगी, जो 23-24 का पार्ट बन गई है। तो एग्जाम्पल अगर हम सिंपल समझना चाहें तो मान लीजिए 23-24 आपके एक्चुअल बुक टर्नओवर 100 रुपीज है, लेकिन सम 20 रुपीज ऑफ 22-23 जो आपने अप्रैल टू अक्टूबर 23 जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का पार्ट बन गई 20 रुपए की, वो क्लब हो गई है तो 120 रुपए दिखा रहा है, होना 100 रुपए चाहिए था। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन जिसे मैं दिखा तो रहा हूं, आई एम शोइंग इट टू यू, बट आप फॉलो मत कीजिएगा, यू नीड नॉट रिक्वायर टू फॉलो। मैं बताऊंगा कि आप क्यों फॉलो नहीं करेंगे, पहले आप समझ लीजिए पहला ऑप्शन क्या है। कि 120 रुपए रहने दीजिए आप टेबल 4 के अंदर, रहने दीजिए। टेबल 9 में भी लाइबिलिटी आपकी पे करता हुआ दिखाएगा, बट दैट कैन बी क्रॉस चेक्ड एंड वेरीफाइड। अगर आपका कोई जीएसटीआर 9 22-23 का उठाएगा, 22-23 का उठाएगा, तो आपने क्वाइट ऑब्वियस है टेबल 10 में दिखाया होगा। अगर प्लस है, माइनस है तो 11 में, और 14 में कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्सेस पे किए होंगे, वहां से मैच कर जाएगा। एम आई राइट? जस्ट आपकी बुक टर्नओवर तो 100 है, लेकिन 120 आ रही है, 20 रुपीज आपका स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन है। तो इस डिफरेंस को, इस रीजन को आप टेबल 6 ऑफ जीएसटीआर 9C में दिखा सकते हैं। दिस इज वन वे। अनदर वे जो आपको करना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट कमिंग आउट बिकॉज रिसेंटली वन इंस्ट्रक्शन, और जब ये फॉर्म नोटिफाई हुआ जीएसटीआर 9 एंड 9C, वहां पे भी इन्होंने कहा था कि अगर 23-24 की ट्रांजेक्शन है, इफ इट इज ट्रांजेक्शन ऑफ 23-24, तो 23-24 की ट्रांजेक्शन ही आप दिखाएंगे, स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन को आप एक्सक्लूड कर देंगे। तो अब 120 रुपए दिख रही है, राइट, टेबल 4 के अंदर। अब आप क्या करेंगे? आपको 20 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो टेबल 4 में जहां पे आप टैक्स पे करते हैं, 20 रुपए आप माइनस कीजिए। बिल्कुल आपने माइनस कर दिया, तो टेबल 9 के अंदर इंपैक्ट आ जाएगा ना आपका, क्योंकि वहां तो वो 120 पे टैक्स पे करता हुआ दिखा रहा होगा। क्वाइट ऑब्वियस इसका रिकंसिलिएशन आपके 22-23 की जीएसटीआर 9 से हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टेबल 10, 11 एंड 14 के जरिए। बट दैट इज वॉट दे वॉन्टेड यू टू मेक इट। आपने अगर करेक्ट कर दिया और टेबल 9 में एक्सेस आ रहा है, दैट एक्सेस कैन बी रीजनड आउट बिकॉज ऑफ टेबल 10, 11 एंड 14 ऑफ जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। और जब आपने 100 कर दिया तो आपका वहां पे टेबल 5 ऑफ जीएसटीआर 9C, बुक टर्नओवर 100 रुपया, जीएसटी टर्नओवर 100 रुपया, मैच। So this is what my suggestion, because this is what instruction advisory for the form वो कहता है, आप करेक्ट कर लीजिए।
जो 23-24 की है वही 23-24 में आप दिखाइए। सो कैन आई सी यस वंस अगेन कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया? से यस इन ए चैट बॉक्स। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, एडवांस। एडवांस अगेन सप्लाई ऑफ गुड्स जीएसटी नहीं लगेगा फ्रॉम 15 नवंबर 2017, नहीं लगेगा। एडवांस अगेंस्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ओनली जीएसटी लीविएबल। सो जहां एडवांस पे जीएसटी देना है तो आपको टेबल 4 रिलेवेंट है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपने इनवॉइस रेज कर दिया है तो दैट गेट एडजस्टेड। जहां आपने इनवॉइस रेज नहीं किया और एडवांस पे जीएसटी की लायबिलिटी है, देन टेबल 4 के अंदर आप दिखाएंगे, एंड दैट इज व्हाट आई एम रेफरिंग टू इन माय ई पॉइंटर ई। तो ये पार्ट भी अगर आपको क्लियर है तो एक बार छोटा सा यस आपका चैट बॉक्स में कि हाँ ये समझ में आ गया आपको। परफेक्ट, सो मेरे सभी साथियों को समझ में आ गया। परफेक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट वन, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देयर आर लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, different school, different version. Instruction recently issued on 9th of December 2024. Lot of divergent perspective, but I am trying to simplify, and then I will give my observation also that what you should do, but you should be carefully listening and watching this part of the component. 23-24 credit on your purchase shown in a period 23-24, 23-24 की क्रेडिट अगर आपने 23-24 के 3B में दिखाई है तो टेबल 6, टेबल 7 और टेबल 8 में जाके आप उसका एनालिसिस करते हैं। जब 23-24 की क्रेडिट आपने अप्रैल टू अक्टूबर 24 विच इज 30th नवंबर 24, वहां टेबल 8A के रेफरेंस में हम करेंगे, एंड इसका एडजस्टमेंट जो है, मान लीजिए 23-24 की क्रेडिट है और आपने अप्रैल टू अक्टूबर 24 में अवेल की, टेबल 13, और अगर आपने रिवर्स की इन अप्रैल टू अक्टूबर 24, टेबल 12। सो ये जीएसटीआर 9 का एस्पेक्ट हुआ। और जब आप 9C में जाएंगे, जीएसटीआर 9C, मैं उसको भी दिखा दूं एक बार आपको, फिर हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए 23-24 की क्रेडिट अगर आपने 23-24 में रिवर्स कर दी है तो टेबल 7, और क्वाइट ऑब्वियस है इसको हम करेंगे डिस्कस, लेकिन एक बार समझ लेते हैं ब्रॉडली जो टेबल्स हैं उनको समझ लेते हैं जिससे क्लैरिटी हो जाए। अब आप आ जाइए यहां पे 9C के अंदर। 9C के अंदर टेबल 12 से आपकी आईटीसी स्टार्ट होती है। आप सबसे पहले बुक क्रेडिट लेंगे, उसका आप एडजस्टमेंट करेंगे। आईटीसी बुक इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर 22-23, क्लेम्ड इन 23-24। सी बोलता है आईटीसी बुक्ड इन 23-24 बट क्लेम्ड इन 24-25। ए प्लस बी माइनस सी करके एडजस्टमेंट ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। आपकी जीएसटी क्रेडिट 9 से जो आ रही है उससे बुक क्रेडिट को मैच किया जाएगा। अगर मैच कर गया तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज अनरिकंसाइल्ड है तो आपको टेबल 13 में जाके रीजन देना पड़ेगा। रीजन वाइट इज नॉट रिकंसाइल्ड। टेबल 14 जो ह्यू एंड क्राई ऑलवेज होता था, एक्सपेंस वाइज बाइफिकेशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी, इट इज ऑप्शनल। 22-23 में भी ऑप्शनल था, 23-24 में भी ऑप्शनल। And table 15 talks about region for non-reconciled differences in ITC. And table 16 में वो कहता है कि for table 13 and 15 की वजह से जो differences ITC में आ रहे हैं उसका tax payable कितना है. So this is what GSTR 9C pertaining to ITC. Now let's go to GSTR 9 and discuss each of the table for better clarity. And I'm going to discuss a lot of example also. Rest assured,
that we will do the analysis part also. Table 6 पे आ गए हम. Hope it is visible to my all the participants. Say yes. Say yes, at least I get a clarity that you are seeing this one. Okay, thank you, Charlie. All right. Table 6 talks about detail of ITC availed during the financial year. Quite obvious, 23-24 credit availed in 23-24. Table 6A getting auto-populated, AP stands for auto-populated, from table 4A of GSTR 3B. 23-24 credit in 23-24. Now table 6B, C, D, E. This is editable. You can edit. This is the credit you have availed. So this you can edit in a different, the way you have availed. So these are editable. Here they are saying you must show capital goods separately. So credit pertaining to capital goods must be shown separately. Input and input service can be clubbed together and can be shown under inputs. Similar like 22-23. So input and input service clubbed as input, capital goods separately. Now all these fields comparing to 22-23 are same, but you must take a note of table 6H. 6H, because we are going to discuss this table. Amount of ITC reclaimed other than B above under the provision of this GST Act. So wherever you have taken the credit, but you have reversed in table 4B2 of GSTR 3B to be reclaimed later. And what all such credit? When you fails to pay to your supplier within 180 days. So the claim credit of 4A5 then reversed, and once you pay to the supplier, you reclaim the same. And sometime when supplier has raised the invoice, it is coming auto-populated in 2B, but you have not received the goods. So you reverse such credit in 4B2 of GSTR 3B. Such credit, table 6H. So bear in your mind, you should be keeping what is this 6H we are referring to. So two tables are important, 6B and 6H. Please keep it to your mind that you are keeping this to your mind. And 6M is any other ITC. Availed but not specified above. So it can be used as an alternative option. So depending on your factual position, you need to look at table 6M. So this is 3 table for table 6. You should keep to your mind. Table 7 में क्या है? 23-24 की क्रेडिट आपने 23-24 में कोई रिवर्सल करना है. You need to reverse. And you're reversing in 23-24. Table 7, and reversal may be on account of Rule 37, which is when you fails to pay to your supplier within 180 days from date of invoice. As a buyer, as a recipient, you need to reverse, and it can be reclaimed later once you pay to your supplier. Rule 39, ISD credit. Rule 42 and 43, pro rata reversal towards exempted supply. 17 subsection 5 is the ineligible credit. Now here for table 7A to 7E, they are saying it can be clubbed together and reported in 7H. So these are optional. So you need not bifurcate if you are not in a position. You can club together. I'm not saying need not. It is optional. If you're having bifurcation, you do it. Then Tran 1, Tran 2 credit mandatory, but not of much relevance in 23-24. So table 7H going to be important one for your filing of GSTR-9 for 23-24. Now coming to table 8.
It is an interesting one. And these colored means I wanted to draw your attention. That is the reason these are being colored. Table 8A of GSTR-9 of 23-24 is now getting auto-populated from GSTR 2B. But for 22-23 it was from 2A. और 2A जो ऑटो पॉपुलेट होता था ना, वो टिल 30th नवंबर तक होता था। लेकिन यहां पे ने कहा जो 2B ऑटो पॉपुलेट होगा वो 23-24 का ही ऑटो पॉपुलेट होगा। सो 8A में 2B की फिगर आएगी, वो भी अप्रैल 23 टू मार्च 24 की आएगी। यानी सब्सिक्वेंट पीरियड में जो आप अवेल करते हैं ना, अप्रैल टू अक्टूबर 24, बाय 30th नवंबर, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 8A। 8B में क्या होगा? It is getting auto populated from table 6B and 6H। 6H आपका रिक्लेम था, अगर आपको याद हो तो मैंने कह दिया था, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो 23-24 की क्रेडिट आपने 23-24 में अवेल की, तो वो टेबल 8B जो ऑटो पॉपुलेट होगा 6B एंड 6H से। टेबल 8C बिकमिंग इंटरेस्टिंग नाउ। टेबल 8C में आप क्या डालेंगे मालूम है? वो क्रेडिट जो 23-24 की है, बट आपने अवेल्ड की इन अप्रैल टू अक्टूबर 24 टिल 30th नवंबर 2024, आप उसको 8C में डालेंगे। 8C में अगर अवेल्ड किया तो 8C में डाला और टेबल 13 में डालेंगे जो ऑप्शनल है, लेकिन 8C आपके लिए मैंडेटरी है। सो इम्प्लाइड 8C मैंडेटरी है, तो टेबल 13 ऑप्शनल होके भी कोई फायदा नहीं है, आपको वहां पे भी वो फिगर डालनी चाहिए एज पर माई एडवाइस। और अगर 23-24 की कोई क्रेडिट आप अप्रैल टू अक्टूबर 24 में रिवर्स करते हैं, तो वो आपका रिवर्सल जो होगा टेबल 12 में होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग आप 8C में दिखाएंगे। दिस इज 8C। और अब उसके बाद जो इंपैक्ट आएगा वो 8D में आ जाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे 8D में क्या आएगा, कैसे आएगा, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपको ये 4 टेबल ध्यान रखनी है। अब हम कुछ एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिकल एनालिसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग से, और आप लोग आंसर कीजिएगा अपने आप में। आई एम सीइंग दैट लॉट ऑफ यू आर सिटिंग टुगेदर। आप लोग एक साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के मुझे वॉच कर रहे हैं, तो आपस में आंसर करने की भी कोशिश कीजिएगा। On this table 8A and 8C recent advisory 9 December 2024, lot of hue and cry, but I will give you my justification. So I'm going slowly, and I want each one of you to really, from your side, you must try what would be the answer. I'm going very, very slow. Let's start with. So look at this situation. ITC in the books of 23-24, you're claiming in a period April to October 24 by 30th November 24. So फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप अवेल कर रहे हैं। तो कुछ सिचुएशन मैंने बनाई और मैं चाहता हूं आप लोग समझिए और आंसर कीजिए। फिर स्लोली एंड स्लोली आई विल चेक इन चैट बॉक्स ऑल्सो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। 23-24 की आईटीसी आपने क्लेम की इन 23-24 या रिक्लेम्ड की 23-24 की 23-24 में। तो कौन सी रिलेवेंट टेबल होगी आपके लिए? टेबल 6B एंड टेबल 6H। एम आई राइट? और ये 6B और 6H कहां ऑटो पॉपुलेट करेगी? टेबल 8B में। इसको समझने के लिए समझते हैं, इजी सिनेरियो, दिस इज वेरी आइडियल सिचुएशन। You got 2B of 100 rupees and you have availed the credit of 100 rupees. बुक में भी 100 है, 3B में भी 100 है, और 23-24 में ही आपने अवेल कर ली है। तो क्वाइट ऑब्वियस है
टेबल 6A जो ऑटो पॉपुलेट होगा 100, टेबल 6B जो ऑटो पॉपुलेट होगा 100, टेबल 8A जो ऑटो पॉपुलेट होगा 100, टेबल 8B जो 6B से ऑटो पॉपुलेट होगा 100, ऑल मैच 23 24 इन 23 24। आई होप यहां पे किसी को डाउट नहीं है। कैन आई सी यस इन ए चैट बॉक्स प्लीज? ओके, कोई डाउट नहीं है, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए दूसरा 23-24 की आईटीसी, 23-24 की आईटीसी 23-24 के 2B में आ रही है। एंड लिसन वेरी केयरफुली, वेरी इंटरेस्टिंग। 23-24 की आईटीसी 23-24 के 2B में आ रही है, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं अप्रैल टू अक्टूबर 24 में, टिल 30th नवंबर 24। तो कौन सी रिलेवेंट टेबल होगी? अब 8A जो आपका ऑटो पॉपुलेट हुआ, वो आपका लिस्ट से मान लीजिए 100 रुपए से ऑटो पॉपुलेट हुआ, उसमें 20 रुपए की क्रेडिट ऐसी है, जस्ट अज्यूम, जो आपने 23-24 में अवेल नहीं की। तो 6B में 80 रुपए थे, तो 8B में भी 80 आ गए। आपने कब अवेल किया? अप्रैल टू अक्टूबर 24 में। 8C में आपको ये 20 रुपए डालने पड़ेंगे विद टेबल 13 मैच। से यस, से वाली बात भी आप समझ गए? से यस, एटलीस्ट यस बोलिए जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ ये वाली बात भी आप समझ गए। परफेक्ट। सो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। परफेक्ट। आई एम गोइंग स्लो, जिससे कंफ्यूजन जो इतना है ना वो सारा क्लोज हो कम से कम। कमिंग टू द लास्ट कंपोनेंट ऑफ दिस एग्जाम्पल, 23-24 की आईटीसी 23-24 के 2B में नहीं आई, वो आई 24-25 में। क्वाइट ऑब्वियस है। मान लीजिए आपका सप्लायर, लेट्स अज्यूम योर सप्लायर supposed to file the same invoice, may be dated, हम एज्यूम कर लेते हैं इनवॉइस आपकी मार्च डेटेड थी, बट वो आपके अप्रैल 24 में डाल रहा है। तो अगर अप्रैल 24 में डालेगा GSTR-1 में, तो 2B भी आपके 24-25 में ट्रेवल कर जाएगी। लुक एट दिस एग्जाम्पल फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। ITC of 23-24 March dated invoice shown by your supplier in April 24. So getting auto populated in 2B of 24-25, and you're claiming credit in your 3B of 24-25 because आपने April to October 24 में अवेल किया है। होप आई एम क्लियर। अब हमें कुछ एग्जाम्पल, तो ये सबसे पहले हम किस टेबल में डालेंगे? क्वाइट ऑब्वियस, 8C एंड टेबल 30। Am I clear? But due to this, difference will arise in table 8D. Due to this, the difference will arise. अब उसको समझने की हम कोशिश करते हैं, वो सिनारियो कैसे बनता है। मान लीजिए 23-24 की क्रेडिट है। 23-24 की क्रेडिट का मतलब हुआ 20 रुपए, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 20 रुपीज। टोटल क्रेडिट 100 रुपीज है, लेकिन 20 रुपए की जो इनवॉइस है जो 100 के अंदर है, अब सप्लायर ने 1 में डाली अप्रैल 24 में, तो क्वाइट ऑब्वियस है 2B 20 रुपए लेस से आपका ऑटो पॉपुलेट होगा। तो यानी 8A में 80 रुपए आ रहे होंगे, 80 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने क्रेडिट भी 80 रुपए से ली, क्योंकि आपका इनवॉइस 2B में अप्रैल 24 में आया, तो ये क्रेडिट आप 8C और टेबल 13 में लेंगे 20 रुपए की। तो अब 8D आ जाएगा, जिसमें डिफरेंस हो जाएगा 20 रुपए का। एम आई राइट? 20 रुपए का डिफरेंस हो जाएगा। तो उस डिफरेंस को हम क्या करें, कैसे उसको रिजॉल्व करें? हैं 23-24 की, हम करें कैसे? मैंने 3 ऑप्शन बनाए। ये 3 ऑप्शन मैंने नहीं बनाए, बिलीव मी, मैंने नहीं। मार्केट एज ऑन डेट, देयर आर लॉट मेनी गाइज आर सजेस्टिंग लॉट मेनी वे टू डू इट, एंड देयर ऑब्जेक्टिव इन देयर माइंड इज कि नोटिस नहीं आना चाहिए, आप कुछ इस तरीके से भरिए कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन माय हम्बल सबमिशन,
एंड माई कंसिडर्ड व्यू, मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा, बट लुक एट द ऑप्शन, क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप 8C में फिगर ना डालें, 20 रुपए जो आपने 24-25 में अवेल किए और टेबल 13 में रिपोर्ट कर दे, तो 8D में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट आइडियल सिचुएशन क्या है कि 8C मैंडेटरी है और 13 ऑप्शनल है, शुड मैच। तो मैंने कहा 13 ऑप्शनल है, बट बिकॉज ऑफ 8C हमें 13 को भी रिपोर्ट करना चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो वही है। सो इस केस में अगर डिफरेंस हुआ तो डिपार्टमेंट आपसे रीजन पूछेगा, वेरिएशन, ये वेरिएशन क्यों है, तो यानी इसका मतलब आप रिकंसिलिएशन बनाइए, कीप द रिकंसिलिएशन रेडी विथ यू, ऑप्शन 1। बट क्या हम इसको फॉलो करें, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन ऑल अबाउट। 8D में डिफरेंस नहीं आएगा। कई आई हैव गॉट लॉट मेनी व्यूज कि 8D में डिफरेंस आ गया तो आपके पास बाय डिफॉल्ट नोटिस आने वाली है। तो 8D में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कईयों ने सजेस्ट किया, माई टू माई माइंड डोंट गो लाइक दिस, क्योंकि जस्ट मुझे अगर मैथमेटिक्स की ठीक करनी है, नो, इट इज नॉट करेक्ट अप्रोच। आई विल टेल यू द रीजनिंग ऑल्सो, यू गो विथ मी। सेकेंड ऑप्शन कुड बी, सेकेंड ऑप्शन, आप 8C और टेबल 13 में दोनों को ना दिखाएं। 8C जबकि मैंडेटरी है, आपको मालूम है 8C मैंडेटरी है, लेकिन आप दोनों में ना दिखाएं तो एक रॉन्ग रिपोर्टिंग हो जाएगी आपकी। तो ऑप्शन 2, लेकिन आप क्या फोकस कर रहे हैं, 8D में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तब आप ऐसा ऑप्शन सोच रहे हैं कि 8D में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तभी आप ऐसे ऑप्शन पे वर्क कर रहे हैं। सो मुझे नहीं समझ में आया, मुझे ऑप्शन 3 समझ में आया, तो मैंने ऑप्शन 3 को सोचा। क्या सोचा मैंने कहा मैं दोनों में दिखाऊंगा, 8C में भी दिखाऊंगा और टेबल 13 में भी दिखाऊंगा। लेट इट बी डिफरेंस इन 8D, डिफरेंस रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रिकंसिलिएशन बनाइए ना, मेंटेन द वर्किंग फॉर फ्यूचर डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस आएगा वो आपको टेबल 12, टेबल 13 जो आप GSTR-9C बनाएंगे वो रीजन में टेबल 13 में डाल दीजिए आप, जो 9C भरेंगे। लेकिन जो 9C नहीं भरेंगे उनके लिए एडवाइस क्या होगी कि सर आप एक लेटर के जरिए अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को, जहां आप 9C नहीं भर रहे हैं और आपके ऐसे डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उनकी रिकंसिलिएशन बना लीजिए प्रॉपर वर्किंग के साथ, और एक लेटर के जरिए इंटीमेट टू योर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर telling him that this difference because of so and so region. That is the best way, but go as per the reporting which is required. So to me, अगर आप 8C में डाल रहे हैं तो टेबल 13 में आपको डालना चाहिए। Let it be difference in 8D. This is my answer to all of you. अब आप एक बार यस कर दीजिए कि आप समझ गए हैं। मे बी आपको कहीं पे लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा, ठीक है, वी ऑल आर इक्वली Am I clear? ओके। अब हम कुछ एनालिसिस करेंगे आपस में, और हम कोशिश करेंगे, हमने जो समझने की कोशिश की वो कितनी सही है कितनी गलत है। कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आर यू ऑल रेडी? सब तैयार हैं? से यस वंस अगेन इन ए चैट बॉक्स कि हाँ सर हम तैयार हैं। आप पूछिए, हम तैयार हैं। सो दैट्स वेरी गुड, लॉट ऑफ यस इन ए चैट बॉक्स। आप लोग पहले अपने आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, राइट? यू मस्ट ट्राई टू गिव आंसर बाय योरसेल्फ। 23-24 की आईटीसी है और आपने 3B में 23-24 में दिखाई है। 23-24 की आईटीसी 6A में ऑटो पॉपुलेट हो रही है और आपने अपने 3B में भी दिखाई है। सो कौन सी रिलेवेंट टेबल आपकी होगी? 6A ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम 4A ऑफ GSTR 3B। 6B में आपने भी उतनी ही दिखाई है, 100 रुपए 100 रुपए। 8B में जाएगी 100 रुपए। 2B 8A में आ गया मैच, परफेक्टली मैच। सो ये फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन 23-24 की आईटीसी, एंड दीज आर ऑल मल्टीपल वे से यू कैन रिजॉल्व। हमने कई बार ऊपर सॉल्व कर लिया, लेकिन फिर कर रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन को डिफरेंट कर दे तो आंसर कई बार आपको लगता है अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इफ थीम इज क्लियर,
Answer will be same in all probable situation. Look at the second situation. 23-24 की आईटीसी आपने अवेल्ड की अप्रैल टू अक्टूबर 24 में, तो कौन सी रिलेवेंट टेबल होगी आपके लिए? ऑफ कोर्स 8C एंड टेबल 13, एम आई राइट? थर्ड सिचुएशन, 23-24 की आईटीसी आपको रिवर्स करनी थी, लेकिन आपने रिवर्स की है अप्रैल टू अक्टूबर 24 में। कौन सी रिलेवेंट टेबल होगी? टेबल 8C एंड टेबल 12 ऑफ GSTR-9। यहां तक मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया, से यस कि आपको समझ में आ गया। प्रमेश अग्रवाल जी हैं, आई सॉ हिज आंसर्स, ही इज राइट, थैंक यू वेरी मच, समझ में आ गया। सेकंड एग्जाम्पल, आप कॉपी, आप मेरे आंसर को पहले चेक नहीं करेंगे, आई वांट कि आप लोग अपने हिसाब से आंसर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड सिचुएशन, नाउ आई एम डूइंग बुक क्रेडिट वर्सेस GSTR-2B versus GSTR-3B. GSTR-2B is now sacrosanct. For availment of credit, there are 5 conditions. As a buyer, you should have tax invoice. You must have received goods or services. Your supplier must have paid taxes. You as a recipient regularly filing GST return, and the credit which you are availing in 3B must match with GSTR-2B. And this 2B got introduced from 1st January 2022. Now applicable for 23-24. So यानी आपको 2B से मैच करना है. So reconciliation, book credit, 2B credit, 3B credit. So start. Let's say book में 100 rupees is the credit. 2B is again 100 rupees credit. So 2B is also saying 100 rupees, but you have availed 80 rupees. So it looks like you have less availed, 20 rupees. So if you have less availed 20 rupees, then after 30th November 2024, you will not be able to get this credit. So this ITC is available, either it is ineligible or you have not availed, to be mentioned in table 8E or table 8F. Coming to the next example, book credit 100. 2B is now showing only 80 rupees. While filing 99C, you come across 2B is saying only 80 rupees. 3B have availed 100 rupees. So quite obvious, it is not matching with your 2B to the extent of 20 rupees. And region could be, क्या region है 2B में क्यों नहीं आ रहा? Maybe your supplier has shown B2B supply as a B2C और उसने अपने GSTR-1 को amend ही नहीं किया और आपको भी ध्यान नहीं आया। मे बी आपका टिन नंबर डालना था, डाल पड़ोसी का दिया, आपके 2B में नहीं आ रहा और उसने GSTR-1 अमेंड भी नहीं किया, 2B में नहीं दिख रहा आपके। इंटरस्टेट थी बट इंट्रा स्टेट दिखा दिया। सो 2B में अगर नहीं आया और उसने अपना GSTR-1 टिल अक्टूबर 24 GSTR-1 और 1A के जरिए अगर उसने अमेंड नहीं किया पर्टेनिंग टू 23-24, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, यू विल नॉट गेट क्रेडिट। देन आपको रिवर्स मारना पड़ेगा, 20 रुपए का रिवर्सल। टेबल 7H अब GSTR-9, जब रिवर्सल मारेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी टेबल 9 में क्रिएट हो जाएगी एंड पे थ्रू DRC 03 विच कैन बी डन, पेमेंट कैन बी डन either through e-cash ledger or through e-credit ledger. Hope this part is clear. Can I see yes in a chat box कि हाँ सर ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया हमको? Say yes that this part is also clear to all of you. Thank you very much. Thank you. चलिए हम नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। Wrongly availed. There may be a possibility. आपकी IGST क्रेडिट थी बट आपने गलती से क्या किया, उसको C&S में ले लिया और वैसे वर्सा। आपकी IGST क्रेडिट थी, इसमें कोई डाउट नहीं है,
नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आपने गलती से क्या किया, आपने इसको सी एंड एस में ले लिया, तो आपका बकेट चेंज हो गया। एंड डिपार्टमेंट इज डूइंग लिटिगेशन, राइट? ए बकेट चेंज। While filing 9 and 9C, I'm suggesting you one way what you'd be doing. टेबल 6B में जाइए। टेबल 6B में आईजीएसटी की क्रेडिट थी ना, आप प्लस आईजीएसटी कर लीजिए 20 रुपया। जो गलती से आपने 3B में अवेल किया था सी एंड एस, उसको माइनस कर दीजिए सी एंड एस 20 रुपया, 10-10 रुपया माइनस कर दीजिए, और 20 रुपया आपने आईजीएसटी में अवेल कर लिया। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा मालूम है आपको? लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनना है। 8A आपके 2B से ऑटो पॉपुलेट होता है, राइट? और 2B कहां से? GSTR-1 ऑफ सप्लायर से। सप्लायर ने तो आईजीएसटी की इनवॉइस भी रेज की थी, आईजीएसटी दिखाया भी है उसने, और आपके 2B में आईजीएसटी आ भी रहा है। ये तो गलती आपकी थी कि आपने उसे सी और एस में ले लिया था। अब आपने अगर टेबल 6B में करेक्शन कर लिया तो 8A में आईजीएसटी आ रहा होगा, 8B आपका 6B से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, वहां अब आपने आई कर दिया तो मैच कर जाएगा वो। एम आई राइट? मैच कर जाएगा, यानी नो डिफरेंस, और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई आपकी। अब इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं। वी नो फॉर ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन दैट रॉन्गली अवेल्ड आईजीएसटी अगर आपने ले लिया फॉर ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, पहले वो आईजीएसटी को यूज कर लेता है, तो कल डिपार्टमेंट बोलेगा ना आपने रॉन्गली अवेल्ड आईजीएसटी क्रेडिट ली और यूटिलाइज कर लिया, आप इंटरेस्ट दो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर्कुलर नंबर 192 dated 17 July 2023. What this circular is saying is sum total of I plus C plus S is higher than the wrongly availed credit utilized. Then no interest with retrospective date July 1, 2017. आप पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, and your 99C also getting matched. Penalty, of course, subject to litigation. Wrongly availed credit, even though not utilized, वो बोलता है आपसे पेनाल्टी ले लूंगा मैं, तो मेरा व्यू ये है, इस पे हम डिफेंड कर सकते हैं सब्जेक्ट टू लिटिगेशन। सो प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स कि दिस पार्ट इज अगेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज से यस। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yeah, perfect. So lot of yes. Subham is saying clear, sir. Thank you very much. So Yani, my audience is very watchful today. They are watching so sincerely. Am I right in saying so? आप लोग बहुत seriously देख रहे हैं. Am I clear to all of you? एक बार very much clear. So Chirag is also saying very clear. So thank you very much. So this is good audience. Those who are watching on YouTube, of course, I can't see their comment, but they can always put comment on YouTube, which is going live. आप वहां पे कमेंट डालिए, कम से कम यस नो। मुझे ये लगेगा ना कि मेरे वेबिनार के साथ आपने यूट्यूब लाइव भी देखा है। सो मैंने आपको ये बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन। स्पिल ओवर का मतलब अगेन के 22-23 की कोई क्रेडिट, पुराने साल की क्रेडिट आपने 23-24 में दिखा दी। होता है ना, 22-23 की क्रेडिट आपने अप्रैल टू अक्टूबर 23 में दिखा दी, तो वो अप्रैल 23-24 का पार्ट बन गई। सो 23-24 में क्रेडिट तो आपकी 100 रुपए की थी, लेकिन 20 रुपए की क्रेडिट जो 22-23 की थी, जिसको आपने अप्रैल टू अक्टूबर 23 में दिखा दिया, वो भी आपके 23-24 में आ गई, वो 120 रुपए हो गई, 120 हो गई। तो अब क्या करें? इसको एज इट इज रख दें? अगर आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है, कोई अगर आपका 22-23 का GSTR-9 उठाएगा, टेबल 8C टेबल 13 देखेगा तो सब मैच हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट इंस्ट्रक्शन कहता है नहीं, इंस्ट्रक्शन बोलता है नहीं नहीं बिमल जी, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसे केस में
23-24 की क्रेडिट को 23-24 में दिखाएंगे, स्पिल ओवर को आप हटा देंगे, आप रखेंगे नहीं। इंस्ट्रक्शन के जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर नंबर 4 जो 9 दिसंबर 2024 को इशू किया है, पॉइंट नंबर 4 इसी के ऊपर है, ओनली ऑन दिस पॉइंट। वो बोला है जो 23-24 की क्रेडिट है वो 23-24 में दिखाइए, यानी स्पिल ओवर को आप एक्सक्लूड कर दीजिए। तो जब आप एक्सक्लूड करेंगे तो आप टेबल 6B 3B से जो ऑटो पॉपुलेट हुआ 6A में, वो तो 120 हुआ। 6B में जब आप उसे करेक्ट करेंगे, 100 रुपया कर देंगे तो 20 रुपया आपने निकाल दिए, 100 करेंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा टेबल 6J में। 6J में माइनस नेगेटिव डिफरेंस आएगा और टेबल 8D में पॉजिटिव डिफरेंस आ जाएगा। लेट इट बी, आ जाने दीजिए। एंड रीजन क्वाइट ऑब्वियस, आपकी टेबल 12-13 जो आपने अपनी 9C भरी थी और जो भर रहे हैं आपने टेबल 9 भरा था, सॉरी GSTR-9 भरा था 22-23 का। अब आप इसका रीजन भी आप डालेंगे ना, जब आपकी क्रेडिट आपने 100 कर दी और जो डिफरेंस आ रहा है आपका टेबल 6J विथ 8D, रीजन डाल दीजिए टेबल 13 के अंदर ऑफ GSTR-9C ऑफ 23-24, इट विल मैच, नथिंग टू वरी अबाउट। 8D में डिफरेंस आ गया, डू नॉट गेट वरीड ऑफ। कई, सॉरी टू से, समवेयर आई एम लिसनिंग कि 8D में डिफरेंस आ गया ना, नोटिस आ जाएगी, नोटिस आ जाएगी। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप 9C भर रहे हैं, 9C अगर भर रहे हैं तो रीजन डाल दीजिए टेबल 13 के अंदर। अगर 9C नहीं भर रहा है तो एक लेटर बनाइए, रिकंसिलिएशन वर्किंग बनाइए और उस वर्किंग की डिटेल्स डाल के बोल दीजिए 8D में जो डिफरेंस आया उसका रीजन ये है, अपने जुरिडिक्शनल ऑफिसर को भेज दीजिए एंड गेट एक्नॉलेजमेंट डन। एंड दैट इज व्हाट सफिशिएंट एनफ टू सब्सटेंशिएट। अगर कभी नोटिस आई तो आप बोल पाएंगे ये मैंने पहले से आपको बता दिया है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। टेल मी स्पिल ओवर क्लियर है? से यस इन ए चैट बॉक्स। आई सेड स्पिल ओवर में आप करेक्शन करेंगे, पीयूष जी आप करेक्शन करेंगे, टू मी करेक्शन करेंगे। आई एम सेइंग एवरीवन, आप 23-24 की क्रेडिट 23-24 में दिखाएंगे। होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। परफेक्ट। चलिए अब एक आरसीएम लायबिलिटी कर लेते हैं। आरसीएम लायबिलिटी भी है और कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी है। लिसन वेरी केयरफुली जिससे हम अच्छी तरह से समझ जाएं। आपकी लायबिलिटी भी है और आपकी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी है। There may be two kind of RCM liability, one from registered supplier and one from unregistered supplier. अगर रजिस्टर्ड सप्लायर से कोई आपने सप्लाई लिया है जो सब्जेक्ट टू आरसीएम है, तो क्वाइट ऑब्वियस उसने 1 भरा होगा, उसमें टिक कर दिया होगा सब्जेक्ट टू आरसीएम, सब्जेक्ट टू आरसीएम। आपके 2B में आपकी लायबिलिटी भी दिख रही होगी। अब आपने पे करना है और फिर क्रेडिट लेना है, तो उसके लिए टाइम लिमिट जो 16 सबसेक्शन 4 की है, सेक्रोसेंट 30 नवंबर 24, आपको उस टाइम पीरियड के अंदर पे करके क्रेडिट ले लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो इनवॉइस है रजिस्टर्ड सप्लायर की इनवॉइस, that invoice is the eligible document for availing credit under section 16 subsection 2 rate based section 16 subsection 4. So अगर आपने वो 30 नवंबर 24 तक नहीं पे किया तो वो क्रेडिट लैप्स्ड, कुछ नहीं हो सकता। लायबिलिटी आपकी फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जब आप सेक्शन 12 में आरसीएम देखते हैं, सेक्शन 13 में आरसीएम देखते हैं, वहां से अराइज हो जाएगी पीओटी से। बट क्रेडिट अगर लेना है तो आपके लिए 30 नवंबर 2024 फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। बट इंटरेस्टिंग इज अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने सप्लाई ली सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 या सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 वेर एवर एप्लीकेबल, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, ऐसे केस में आपको एडवाइस क्या है कि अनरजिस्टर्ड सप्लाई के केस में बिंग रिसिपिएंट आपको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करनी पड़ती है। तो मान लीजिए 23-24 की कोई आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया, 23-24 क्यों, मैं तो इसको 19-20 बोल देता हूं। 19-20 में कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने लिया था सब्जेक्ट टू आरसीएम,
आपने आज तक पे नहीं किया। आज आप 12 दिसंबर 2024 को आपको मालूम पड़ा कि आपकी लाइबिलिटी बनती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आरसीएम की लाइबिलिटी आपको पे करनी है, आंसर इज यस। लेकिन जब पे करनी है तो क्रेडिट मुझे मिलेगा, मिलेगा। आप अपने आप को सेल्फ इनवॉइस आज की डेट में 12 दिसंबर 2024 की डेट में सेल्फ इनवॉइस जनरेट करेंगे। अभी सेल्फ इनवॉइस का प्रोविजन जो अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ में जो चेंज हुआ फ्रॉम 1 नवंबर 2024 प्रोस्पेक्टिव, वहां पे उसने 30 डेज का टाइम डाला है। प्रायर पीरियड के लिए कोई टाइम नहीं था। सो पुराने पीरियड का इनवॉइस आज भी आप रेज कर सकते हैं, रेज कीजिए, पेमेंट कीजिए, एंड एज पर रूल 36(1)(b) उसकी क्रेडिट भी आपको मिल जाएगी। तो आपको किस साल में, 23-24 में, अगर 23-24 की लाइबिलिटी की हम बात कर रहे हैं या 19-20 की हम बात कर रहे हैं, ना ना, वो करंट पीरियड में, करंट GSTR-3B ऑफ दिसंबर 2024, उसमें लाइबिलिटी क्रिएट कीजिए, टेबल 3(1)(d), कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट लीजिए टेबल 4A के अंदर, सेम मंथ में आपको क्रेडिट मिल जाएगी। और 24-25 का जो 99C भरेंगे, इस ट्रांजेक्शन को वहां दिखाना है आपको, यानी 23-24 में इट इज ऑल पर्टेनिंग टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर। सो अब मुझे बताइए आपको, और ये वाली बात, जो भी बात मैंने आपसे कही है ना, ये वाइस सर्कुलर नंबर 211 कि आप पुरानी इनवॉइस रेज कर सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। पीओटी तो आपकी पुरानी होगी, इंटरेस्ट की लायबिलिटी रहेगी आपकी, बट आरसीएम की क्रेडिट आपको अनरजिस्टर्ड सप्लायर वाली मिल जाएगी। सर्कुलर नंबर 211 डेटेड 26 जून 2024। तो मैंने आपको एक सर्कुलर का रेफरेंस भी दे दिया, विच यू कैन सी बाय योरसेल्फ। टेल मी यस दैट यू गॉट इट, टेल मी यस यू गॉट इट, कि आपको सबको समझ में आ गया है। एक यस बनता है, क्विकली यस कीजिए, और जो यूट्यूब पे उनसे भी थोड़ा यस करने का। तो आप लोगों ने सबने यस किया, सबको समझ में आया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा पार्ट करते हैं, जो एडवाइजरी आई है उसको करने की कोशिश करते हैं, और एडवाइजरी में कंफ्यूजन भी है। कोई इशू नहीं, कंफ्यूजन है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, आपको क्या करना चाहिए। सो एडवाइजरी हम देखते हैं, मैं एडवाइजरी पे लेके जाता हूं आपको। गो टू एडवाइजरी। ये एडवाइजरी है जो 9 दिसंबर 2024 को इशू की गई। इसमें 5 पॉइंट डिस्कस किए गए। तो मैं पहले पॉइंट नंबर 4 पे चला जाता हूं, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया था अभी। और मैंने कह दिया था स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन है, तो 22-23 का अगर कोई क्रेडिट है जो 23-24 में दिखा रहे हैं आप, तो उसको एक्सक्लूड कीजिए। डिफरेंस आता है तो आने दीजिए, मैंने आपसे कहा था, राइट। अब आपको ध्यान रखना है, उसी कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो मैंने भी रेस्पेक्टिवली अपनी पेपर डॉक्यूमेंट जो आपके साथ डिस्कस करने हैं, मैंने खोल लिए। अब आप आ जाइए। इनवॉइस 22-23 की थी, समझा रहा है जो मैंने स्पिल ओवर बता दिया था, which is appearing in table 8A of GSTR-9 of financial year 23-24। सो 22-23 की कोई इनवॉइस अगर टेबल 8A में आ गई बिकॉज ऑफ अप्रैल टू अक्टूबर 23, तो वो आपके टेबल 8A में आ रही थी। As a supplier would have reported the same GSTR-1 after due date of filing 1 for the tax period March 23। हो सकता है उसने अप्रैल 23 में अपना 1 में डाला होगा। तो इसको आप कहां पे रिपोर्ट करेंगे? 22-23 की क्रेडिट थी, जो अप्रैल 23 में GSTR-1 फाइल हुआ, 2A में ऑटो पॉपुलेट हुआ, टेबल 8A ऑफ GSTR-9 फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आ गया। अब कहां दिखाएंगे आप? तो अब वो क्या कहता है, आप ध्यान से पढ़िए, और मैंने आपसे इसी बेसिस पे कहा था कि स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन को आप करेक्ट कर लेंगे। मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने ये कहा, दिस इज द आईटीसी ऑफ लास्ट ईयर 22-23 was auto populated in 8A of GSTR-9 of 22-23। यहां तक हम सब फैक्चुअली मानते हैं कि ये वाली बात है। Hence, aforesaid value need not be reported in table 8C and table 13 of 9 of 23-24। Quite obvious है।
टेबल 8C और टेबल 13 सिर्फ उसी लिए यूज होगा जो 23-24 की क्रेडिट है, बट आपने अप्रैल टू अक्टूबर 24 में यूज की है। तो यहां तक भी बात समझ में आ गई हमको। अब वो बोलता है दिस इज इन लाइन विथ इंस्ट्रक्शन नंबर 2A गिवन फॉर द नोटिफाइड फॉर्म GSTR-9 विच स्टेट्स, यानी ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं। वे स्टेट दैट टेबल 4-5 आउटवर्ड सप्लाई का था, 6-7 ITC का था, शुड हैव डिटेल्स ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर ओनली, यानी करेंट फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन ही उसमें। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था ना, टेबल 6B में जाके आप एडजस्ट कर लीजिए। तो क्या होगा, 6B में जाएंगे तो 6J में नेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा, 8D में पॉजिटिव आ जाएगा। लेट इट बी, वर्किंग बना लीजिए। इसका रीजन है टेबल 13, GSTR 9C में डाल दीजिए। अगर 9C नहीं भरते, एक लेटर के जरिए वर्किंग रिकंसिलिएशन बना के डायरेक्शनल ऑफिसर को सबमिट कर दीजिए। दैट इज व्हाट आई सजेस्टेड। अब 8D से मैच करना है, प्लीज एज पर मी, डोंट गो विद द मैथमेटिक्स कि मैच करना है, 8D मैच नहीं किया तो कल नोटिस आ जाएगा। डोंट डू दैट। मैं तो एडवाइस यही करूंगा कि 9C जिनके पास है उनके पास तो ऑप्शन है कि वो रीजनिंग डाल सकते हैं। 9C जिनके पास नहीं है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो लेटर विथ रिकंसिलिएशन ड्यूली एक्नॉलेज्ड, आप लोग एक बार यस कहिए कि हाँ आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। प्लीज टेल मी कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। से यस कि आप समझ गए इस बात को। चलिए अब हम जो दूसरे पॉइंटर थे उन सारे पॉइंटर को डिस्कस कर लेते हैं। 5 पॉइंटर थे, एक तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब पॉइंट नंबर 1 पे जाता हूं। इसमें मैं आंसर पूछूंगा आपसे और आपको आंसर भी देना है। इनवॉइस हैविंग डेट ऑफ 23-24, मान लेते हैं 31 मार्च 2024 की डेट थी, बट सप्लायर ने अपने GSTR-1 में अप्रैल 24 पे डाली है। एम आई राइट? सप्लायर अगर 1 में अप्रैल में डालेगा तो क्वाइट ऑब्वियस 2B में ऑटो पॉपुलेट अप्रैल में ही होगा, अप्रैल 24 में, यानी 8A में ये फिगर नहीं आएगा। एज ए रिजल्ट, this amount is not auto-populated in table 8A of GSTR-9 of financial year 23-24 because it's part of next year's 2B. How to report such transaction in GSTR-9 of financial year 23-24? 23-24 की क्रेडिट थी, बट अब आप अवेल करेंगे अप्रैल टू अक्टूबर 24 में। तो आप कहां रिपोर्ट करेंगे? ऑफ कोर्स टेबल 8C and table 13 of GSTR-9 of 23-24, और वो कहता है दिस इज इन लाइन विद द इंस्ट्रक्शन टू टेबल 8C एंड टेबल 13 ऑफ GSTR-9। अब टेबल 13 ऑप्शनल है, लेकिन बट बिकॉज ऑफ टेबल 8C मैंडेटरी, टेबल 13 भी आपके लिए मैंडेटरी है, तभी वो मैच करेगा। सो प्लीज आपको केयरफुली करना पड़ेगा, बट इसकी वजह से 8D में डिफरेंस आ जाएगा, इसकी वजह से। अब मुझे, मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, लोगों ने कहा नहीं नहीं 8D में डिफरेंस नहीं लेके आना, हमको तो समहाउ किसी भी तरीके से मैच कर देना चाहिए, 6B में डाल देते हैं। अब आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैंने आपसे 2-3 बार कह दिया कि 8D में डिफरेंस आ जाए तो घबराना नहीं है, बिकॉज दैट इज क्रॉस चेक विद द टेबल 8C एंड टेबल 13 ऑफ GSTR-9 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। यू हैव ऑल्टरनेटिव वेज एंड मीन्स। माय एडवाइस, अगर 8D में डिफरेंस आए, नथिंग घबराओ, नथिंग टू वरी अबाउट। सो विच इज रिक्वायर्ड टू बी, एंड 9C गिविंग a place to you to record your region। जहां 9C नहीं है वहां भी मैंने आपको सजेस्ट किया लेटर विद वर्किंग एक्नॉलेजमेंट। दैट वुड बी माय एडवाइस। रेस्ट आई एम लिविंग इट टू ऑल ऑफ यू टू डिसाइड। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, invoice belong to financial year 23-24 and these 2 pointers are very important। यहां मैं आपका अटेंशन चाहूंगा, आप कैजुअली मत सुनिएगा। ये 2 पॉइंट जो आप डिस्कस करने वाला हूं ना, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा।
और जब ध्यान से सुनेंगे और जीएसटी लॉ को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। अदरवाइज क्या हो रहा है मालूम है, इस पॉइंट को देख के हमने ह्यू एंड क्राई चालू कर दिया। ह्यू एंड क्राई, नहीं नहीं ये मिसमैच हो जाएगा, नोटिसेस आपके पास आने लगेंगे, बच जाओ, और इसको यहां ऐड कर लो, इसको वहां माइनस कर। सॉरी, विद ऑल रिगार्ड्स टू माय फ्रेंड्स, बट स्टिल आप ये दो पॉइंट ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 2, इनवॉइस 23-24 की थी और आपने 23-24 में क्लेम भी किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस साल की इनवॉइस उस साल आपने क्लेम भी किया, बट आपने चूंकि सप्लायर को पेमेंट नहीं किया विद इन 180 डेज, रूल 37, आईटीसी आपने 23-24 में रिवर्स भी कर दिया, लेकिन 24-25 में आपने इस क्रेडिट को रिक्लेम किया क्योंकि आपने अपने उस सप्लायर को पेमेंट कर दिया। सो यानी द क्रेडिट क्लेम्ड reversed in 23-24 pertaining to non-payment to the supplier as per second proviso of section 16 subsection 2। 24-25 में जब आपने पेमेंट किया, आपने इस क्रेडिट को रिक्लेम किया। टेबल 6H आपको याद आ रहा होगा, रिक्लेम, बस माइंड में रखिए। वो बोलता है हाउ टू रिपोर्ट सच ट्रांजेक्शन इन GSTR-9 ऑफ 23-24। 23-24 में आप कैसे दिखाएंगे इसको? तो पहले हम इसकी बात समझ लेते हैं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा आपके सामने। What he's saying, instruction is saying, this reclaimed ITC, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये सारा एडवाइजरी का पार्ट है। So I'm only reading the advisory and explaining to you. This reclaimed ITC shall be reported in table 6H of 9 of 24-25। 23-24 की क्रेडिट थी, रिवर्स की। अब मैंने जब पेमेंट कर दिया 24-25 में, तो मैं 23-24 में नहीं दिखाऊं। ये बोलता है कि 24-25 के टेबल 6H ऑफ GSTR-9 में दिखाओ, ह्यू एंड क्राई। हेंस not in the table 8C and table 13 of GSTR-9 of 23-24। अब ह्यू एंड क्राई कि अरे ये मेरी 23-24 की तो क्रेडिट थी, मैं क्यों नहीं दिखाऊं 8C और टेबल 13 में? पैन इंडिया, राइट? पहले समझ लेते हैं, यही ह्यू एंड क्राई चल रहा है। चलिए ठीक है, मान लेते एक बार के लिए। फिर वो बोलता है दिस इज इन लाइन विद द इंस्ट्रक्शन टू द टेबल 13 गिवन इन द नोटिफाइड फॉर्म GSTR। बोलता है हमने ये वाली बात आपको इंस्ट्रक्शन के साथ ऑलरेडी कह दी है, बता दिया है। तो अब जब आप 6H ऑफ 24-25 में दिखाएंगे, 8C और टेबल 13 में नहीं दिखाएंगे, तो क्वाइट ऑब्वियस है कई प्रॉब्लम आ जाएंगी आपके पास। जब प्रॉब्लम आ जाएंगी तो लोगों ने सजेशन देना चालू कर दिया। तो किसी ने कहा, मैंने एक जगह नोट किया है, मैं आपको बताऊं, एक 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 व्यू ये आ रहा था कि आप 6B में इंक्लूड कर लो ये रिक्लेम्ड वाला, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फिर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप 6B से एक्सक्लूड करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 6J और 8D में। यानी मल्टीपल वे में चीजें घूम रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मैं तो इसी के साथ जाऊंगा, जो ये कह रहा है ना मैं इसके साथ जाऊंगा। लेट इट बी, मैं तो 6H 24-25 में ही दिखाऊंगा। अब मैं आपको आंसर देता हूं कैसे। मान लीजिए आपने सप्लायर को 24-25 में पेमेंट नहीं किया, एज्यूम आपने किया 25-26 में, 25-26 में, था 23-24 का। अब 24-25 से क्या लेना देना? यानी जब आप सप्लायर को पे करेंगे, जब आपने 25-26 में पे किया, तभी आप रिक्लेम करेंगे, और रिक्लेम के लिए नो टाइम लिमिट। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे तो आप बड़ा अच्छा लगेगा आपको। वो था टेबल 6H ऑफ दैट रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर जहां आप पेमेंट कर रहे हैं। या तो 24-25 में आप पेमेंट कर रहे थे, अगर 24-25 में पेमेंट नहीं किया, फिर इसका मतलब जिस साल में आप पे करें और रिक्लेम करें, आप उस साल के 6H में डालेंगे। और रीजनिंग ऑलवेज यू कैन राइट
रीजन वर्किंग रिकंसिलिएशन। बट जीएसटी लॉ का ये जो प्रोविजन है, इस कॉन्टेक्स्ट में इस इंस्ट्रक्शन को पढ़िए आप, आपको समझ में आएगा। उसने फिर कहा एक और चीज, सिमिलर रिपोर्टिंग इज एप्लीकेबल फॉर आईटीसी रिक्लेम्ड एज पर रूल 37A। अब रूल 37A आपके टेबल 7 में नहीं है। रूल 37A क्या है मालूम है? रूल 37A इज एप्लीकेबल फ्रॉम 26 दिसंबर 2022। आपका सप्लायर 1 भरता है, मान लीजिए सप्लायर ने भरा, आपकी इनवॉइस दिखा दी 1 लाख रुपए की, पर उसने 3B नहीं भरा। उसको 3B भरना है 23-24 का, अगर ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, तो 30 सितंबर 24 तक उसको 3B भरना है, पेमेंट करना है, तभी आप क्रेडिट ले पाएंगे। अगर उसने पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं किया 30 सितंबर 24 तक, तो आपको 30 नवंबर 24 तक इस आईटीसी को रिवर्स करना है, रिवर्स करना है। जो आपने रिवर्स किया दैट कैन बी रिक्लेम्ड ऑल्सो ओनली व्हेन योर सप्लायर पेज द टैक्स। तो हो सकता है कि 24-25 में नहीं किया उसने, उसने 26-27 में किया, तो आपको 26-27 में क्रेडिट मिलेगा, और रिक्लेम के लिए नो टाइम लिमिट। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप रीड कीजिए, आपको समझ में आएगा 6H ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर जहां पे पेमेंट हुआ। आई होप यहां आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि अगर लॉ को देख के अगर हम इंस्ट्रक्शन पढ़ें तो हमारी समझ में सिर्फ मैथमेटिक्स मैच नहीं करना है, आप वर्किंग बनाइए, रिकंसिलिएशन बनाइए, रीजनिंग दीजिए। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा 8D में नेगेटिव आ गया, सॉरी, दैट इज माई हम्बल सबमिशन, माई कंसिडर्ड व्यू। सो दिस इज माई पर्सनल व्यू, दैट इज माई सजेशन। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई नहीं आई, पहले मुझे बताइए, पहले आप लोग ये बताइए कि हाँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। नाउ यू आर गेटिंग इट, यस इन ए चैट बॉक्स। पहले आप यस कीजिए चैट बॉक्स में। देखिए आई एम नॉट डिस्कसिंग कि इंस्ट्रक्शन में है प्लस माइनस कर दीजिए, ये कर दीजिए, ना ना ना, आपको समझना पड़ेगा। चलिए यहां तक आपने समझा। अब आइए, डबल ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, ग्रीस बंसल ने बोलना चालू कर दिया, सर रिवर्सल आशीष जैन ने बोलना चालू कर दिया। अरे आशीष, आपने क्लेम किया 6B, रिवर्स किया टेबल 7, सो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आप नंबर्स लेके बैठिए थोड़ा। ये वीडियो ना यूट्यूब पे भी होगा, ये जो वीडियो मैंने आज बनाया है इट इज लाइव ऑन यूट्यूब। तो प्लीज आप यूट्यूब पे रख के एक एक लाइन सुनिएगा, एक एक लाइन सुनिएगा। मैंने बहुत मेहनत किया कि बस इस वीडियो में मैं आपको उस तरीके से चीजें दे पाऊं जिस तरीके से आपको समझना चाहिए लॉ को। सिर्फ ये 99C भरने की बात नहीं है। कई बार ना क्लाइंट हमको क्या समझता है मालूम है? क्लाइंट हमको ये समझता है 99C भर रहे हो, 99C में है क्या? मैं अपने एक क्लाइंट का आपको केस बताता हूं। एक क्लाइंट मुझसे बोलता है सर ये वाला फिगर कहां जाएगा। मैंने बोला भैया ये फिगर कहां जाएगा, तुम्हारे पूरे फैक्ट्स मुझे चेक करने पड़ेंगे, तब मैं जाके बताऊंगा कहां जाएगा। आपने तो पूछ लिया ये वाला फिगर कहां जाएगा, ये बता दो। मैं सारे फैक्ट्स चेक करने पड़ेंगे। हम जो सिंपल वे में चीजें करने की कोशिश करते हैं ना, आप वैल्यू दीजिए एंड चार्ज मनी, वैल्यू फॉर योर सर्विसेज। मैंने उस क्लाइंट से बोल दिया भैया ये 99C रिटेनेसिव वर्क नहीं है कि आप कॉम्प्लायंसेस की बात कर रहे हैं। 99C में मुझे आपके फैक्ट एंड फिगर्स देखने पड़ेंगे, सो आई शुड बी कॉम्पेंसेटेड, प्रॉपरली रेम्यूनरेटेड। हाँ ऑफ कोर्स सीए सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे कराओगे तो इसके चार्जेज हैं। आई होप यू ऑल एग्री, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। So this is what we need to understand. Am I clear to all? Am I clear to all? Please don't assume it is only clerical work. मुझे प्लस माइनस करना है ना, don't do that. Come to the next table now. Okay, next table. This is also interesting. So मैंने आपसे कहा है आपको टेबल 2 and 3 ध्यान से सुनना है। टेबल 3 अब ध्यान से सुनिए। Invoice belongs to financial year 2023-24. So मान लेते हैं 31 मार्च 24। गुड्स नॉट रिसीव्ड इन 23-24, आपको 31 मार्च 24 तक गुड्स नहीं मिले, गुड्स। सो एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज भी गुड्स रिसीव भी होना चाहिए क्रेडिट लेने के लिए। देयरफॉर आईटीसी क्लेम्ड इन 4A5
क्योंकि सप्लायर ने अपना मार्च 24 का इनवॉइस 1 में डाल दिया, आपके 2B में भी ऑटो पॉपुलेट हो गया, लेकिन आपको गुड्स नहीं मिला, तो आप क्रेडिट ले लेंगे क्या? ना, आप क्रेडिट नहीं लेंगे, आपके 4A 5 में आ रहा होगा एज पर GSTR 3B, लेकिन आप इसको रिवर्स करेंगे रिक्लेम लेटर 4B 2 में। एम आई राइट? यही करते हैं ना, मार्च महीने का जो 3B आपने भरा होगा, विच इज एज पर गाइडलाइंस ऑफ सर्कुलर नंबर 170। अब इस आईटीसी को आप 24-25 में ले रहे हैं, अप्रैल 24 टू अक्टूबर 24 टिल 30 नवंबर 24। इस ट्रांजेक्शन को आप कहां रिपोर्ट करेंगे? तो इस केस में भी आप रिवर्स कर रहे हैं, क्लेम 4A 5 में आ गया, रिवर्स 4B 2, फिर रिक्लेम कर रहे हैं आप। और यहां पे बोलता है कि ये जो गुड्स वाला रिक्लेम है, इसको आप टेबल 8C और टेबल 13 ऑफ 23-24 में लेके जाइए। जो 2 में नहीं कह रहा, 2 पर है ना, 2 में नहीं बोला, 2 में बोला 6H में दिखाओ। और 2 में 6H क्यों बोला? मैंने कहा 24-25 में दिया तब, लेकिन 25-26 में दिया तो, अगर आपने सप्लायर को 25-26 में दिया तो, या 26-27 में दिया तो, इसीलिए 6H। सो टेबल जो .2 है, विच इज पर्टेनिंग टू रूल 37, रूल 37A, लेकिन पॉइंट नंबर 3 पर्टेनिंग टू गुड्स, एंड गुड्स की क्रेडिट 30 नवंबर 24 के बाद तो आपको मिलेगी नहीं, राइट ना? यानी 37A तो 30 नवंबर के बाद मिल जाएगी रिक्लेम क्रेडिट। यहां पे गुड्स की क्रेडिट की बात चल रही है, जो 30 नवंबर 24 तक ही लेनी है। इसीलिए वो बोलता है टेबल 8C एंड टेबल 13 ऑफ GSTR-9 ऑफ 23-24 में दिखाएंगे। मैंने एक और चीज ऐड कर दी आपके लिए कि मान लीजिए आपके पास माल आ गया, इनवॉइस नहीं आई, और इनवॉइस आपके पास आई अप्रैल 24 में, तो भी आपको यही सिचुएशन आपको फॉलो करनी है। सो आई होप ये पॉइंट नंबर 2 और 3 का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। कैन आई सी यस कि एटलीस्ट आपको लॉ के साथ इंस्ट्रक्शन को समझना आ गया है? प्लीज से यस कि एटलीस्ट आ गया है। आप पहले ये बताइए, लॉ के साथ इंस्ट्रक्शन को समझना आ गया है? ऑल राइट, कम से कम मेरी इतनी मेहनत आई एम थैंकफुल टू ईच एंड ऑफ यू दैट नाउ यू आर रीडिंग द लॉ एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब आप वो मैथमेटिक्स में मत जाइएगा, 8D मैच करना है, ये करना है, वो करना नहीं कीजिएगा, एकदम नहीं। अब आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। चलिए, मैंने ये वाला पार्ट भी आपका कर लिया। आप इसको मूव करके पॉइंट नंबर 4 कर चुका हूं, लास्ट पॉइंटर है इंस्ट्रक्शन का, इसको और कर लेते हैं। और इसको करने के बाद हमारे सारे इंस्ट्रक्शन खत्म, और उसके बाद हम फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। वेयर टू रिपोर्ट reclaim of ITC for an invoice belong to 23-24 which is claimed, reversed, reclaimed in same year। यानी आपने पहले क्लेम किया, फिर रिवर्स किया और रिक्लेम किया, सेम ईयर में आपने किया, तो आप कहां पे इसको रिपोर्ट करेंगे? पहले आंसर्स पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या कहता है। As already clarified by CBIC press release 3rd July 2019 in para K, it may be noted that level in table 6H reclaim की बात करता है, clearly states information declared in table 6H is exclusive of table 6B। वो बोलता है कि 6B एक अलग टेबल है और 6H अलग टेबल है, 6H reclaim के लिए यूज होगा। Therefore, information of such input tax credit is to be declared in one of the rows only। एक ही रो में डालिए आप। Further, as the claim and reclaim is reported only in one row, therefore same should not be reported in reversal
under table 7 of GSTR-9 of 23-24. अगर इसकी बात हम मान लें, then this will lead to difference in 6J, since 6A contain double impact of claim and reclaim. ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. So this will lead to difference in 6J. अब क्या करें? इंस्ट्रक्शन फॉलो करूं या अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करने की कोशिश करूं? टू माय माइंड इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, वर्किंग रेडी रखिए. 9C में रीजनिंग डाल सकते हैं, लेकिन 9C नहीं भर रहे तो लेटर बनाइए विथ रिकंसिलिएशन, इंटीमेट टू द जुडिक्शनल ऑफिसर एंड टेक एक्नॉलेजमेंट. और मैंने अपनी बात भी आपके सामने रखी. Any difference in table 6J and 8D of GSTR-9 might lead to notices. मैं मान लेता हूं नोटिस आएगा आपके पास. Hence, advised to prepare reconciliation with the region to be recorded in GSTR-9C or through a letter reported to jurisdictional officer with acknowledgement. थप्पा जरूर लगवा लें कि आपने बता दिया है, वर्किंग दे दी है, where 9C is not filed. So this is pertaining to input tax credit. अब आपके मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें कि सर मेरा मल्टीपल क्वेश्चन ये है, ये है, ये है. अब मैं आपको जो बैलेंस के कुछ टेबल हैं वो दिखा दूं, जिससे हमारा ये 9C पूरा क्लियर हो जाएगा. अब आप आ जाइए 9 में. पहले 9 चलता हूं, 9 क्लियर कर लूं. टेबल 14 तक हमने टेबल 8 कर लिया था, टेबल 9 कर लिया, 10, 11, 12, 13 कर लिया, 14 कर लिया. टेबल 15 जहां पे पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड की बात है, इस ऑप्शनल नहीं है, मत डालिए. इंफॉर्मेशन ऑन सप्लाई रिसीव फ्रॉम कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर डीम सप्लाई अंडर सेक्शन 143 जॉब वर्क गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ऑप्शनल. HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मैंडेटरी. अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो क्वाइट ऑब्वियस फॉर बोथ B2B एंड B2C 6 डिजिट. अगर 5 करोड़ से नीचे है देन कंपल्सरी 4 डिजिट फॉर B2B सप्लाई. यानी आउटवर्ड के लिए HSN आपको डालना ही पड़ेगा, लेकिन इनवर्ड के लिए ऑप्शनल. और लेट फीस फिर उस पर बात करता है, तो यहां पे मैंने ये सारे 9C के टेबल भी आपके सामने रीड कर लिए थे. लेट फीस एक बार चेक कर लीजिए. 200 रुपया पर डे, 200 रुपीज पर डे, 100 CGST, 100 SGST और 0.25% of turnover in the respective state, but whichever is lower. अगर आपने 9C नहीं भरा, इसमें एक डिस्प्यूट ये हो रहा है कि तो 9 की है सर, 9C अगर नहीं भरा, टू माय माइंड 9C के लिए कोई अलग लेट फीस नहीं है. अंडर सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न इंक्लूडिंग सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करता है. सो वेर एवर एप्लीकेबल. सो आप 9C तभी भरेंगे जब आप पहले 9 भरेंगे फिर 9C भरेंगे. टू माय माइंड 9C के लिए आपके ऊपर अलग से कोई लेट फीस नहीं लगने वाली. सो फ्रॉम माय साइड मैंने कोशिश की कि आपको ये पूरी स्क्रीन समझाऊं, बताऊं, और आपको मैंने बता दी. कोशिश भी कर ली बहुत सारी चीजों के साथ. अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी, हमारे कोई ग्रीस बंसल जी हैं, कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं. ग्रीस, आप फिर से समझिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूं, आपके जरिए सबको समझा रहा हूं. आपके फैक्चुअल के हिसाब से आपको 9C बनाना है. आप एक पॉइंट दे के अगर मुझसे बार बार पूछेंगे तो मैंने आपको बताया एक पॉइंट के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं. सो इट इज हाईली एडवाइजेबल. ग्रीस, आपके जरिए आप सभी से बात कर रहा हूं मैं. इट इज हाईली एडवाइजेबल कि जिस बेसिस पे मैंने आपको समझाया, जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है वो डॉक्यूमेंट आप यूट्यूब चैनल पे अभी जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहां से डाउनलोड कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा. और वहां से करने के बाद अगर फिर भी सॉल्व ना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा. आवर ऑफिस A to Z Taxcorp LLP team will try to respond to the queries, but the disclaimer, मैंने कहा ना, एक फैक्चुअल के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं. सो दैट इज द रीजन आई एम ओनली टेलिंग यू गो टू द फैक्चुअल्स. मैंने उस क्लाइंट की बात की थी आपसे,
कि सिंपल एक चीज डाल के पूछ लेना, सर विथ कंसीडर्ड रिगार्ड एंड अगर आपको प्रॉपर 99C भरना है तो आपको प्रॉपर फैक्चुअल चेक करने पड़ेंगे। अब थोड़े इंपॉर्टेंट टेक अवेज, आप आउटवर्ड सप्लाई देख रहे हैं तो सबसे पहले आप रिकंसिलिएशन बनाइएगा ईबे बिल पोर्टल से। ईबे बिल पोर्टल का डेटा डाउनलोड कीजिएगा। बुक की टर्नओवर, वन की टर्नओवर, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो ई इनवॉइस पोर्टल से ई इनवॉइस का डेटा विथ कॉरेस्पॉन्डिंग 3B प्रॉपर रिकंसिलिएशन बनाना है आपको। यानी इट इज नॉट लाइक ओनली फिलिंग अप द डिटेल्स फ्रॉम 1 and 3B और बुक से मैच कर दिया। You need to go back to eBay bill. You need to go back to e-invoices for having, क्यों करना है? For your betterment. अगर आपने सारी रिकंसिलिएशन अभी बना ली तो क्वाइट ऑब्वियस है, इंस्पेक्शन आए, ऑडिट आए, ASMT 10 आए, आपके पास रिप्लाई अवेलेबल होगा। बट आज की डेट में वी ऑलवेज लुक एट कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कि कुछ नहीं करना, इधर ये डालना है, उधर वो डालना है, ये फिगर कहाँ जाना है, ये फिगर कहाँ जाना है। इट विल नॉट वर्क। प्लीज, अगर आप वाकई 100% अच्छा काम करना चाहते हैं, दिस रिकंसिलिएशन मस्ट बी रेडी फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग ITC इनवॉइस वाइज। आप पहले ITC रजिस्टर लीजिए बुक्स का, उसको चेक कीजिए कि इसने जो ITC क्लाइंट ने ली है क्या अवेलेबल है। कई बार लेके बैठे होते हैं लेकिन अवेलेबल इनएलिजिबल है, नहीं है, और लेके हमने यूटिलाइज भी कर लिया, तो सिर्फ आप क्या 2B और 3B देखेंगे? सर नहीं चलेगा। इनवॉइस, आपका ITC लेजर, बुक की क्रेडिट, अकॉर्डिंगली 2B को लीजिए, 2B के साथ 3B को लीजिए, पुराना 99C, फिर आप इस साल का 99C पर्टेनिंग टू ITC आप भरेंगे, तब जाके आपका कोरिलेशन मैच होगा। I know that lot of queries are in the market, but my only humble submission to all of you is I have tried my best in a given time frame. I thought of 1 घंटे में मैं कंप्लीट करूंगा, but we have extended to 1 hour, almost 35 minutes. So I've tried my best. जो सीट मैंने आपको दिखानी थी वो सीट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, प्लीज डाउनलोड। ये वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल होगा, आप बार बार वॉच कीजिए, चाहे अपने प्रोफेशनल दोस्त, क्लाइंट, किसी को देना है दीजिए। कम से कम अगर हम किसी का अच्छा कर सकते हैं, वी मस्ट ट्राई आउट। और मैंने आपको इंस्ट्रक्शन से पढ़ने के लिए नहीं दिखाया, मैंने आपको GST लॉ से मैच करना बताया कि आप उसको GST लॉ से मैच कैसे करेंगे। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, यस बोल के, हाँ सर बात समझ में आ गई है। एक यस बनता है, यस बोलिए कि हाँ आपकी बात सर समझ में आ गई है। कैन आई सी यस? Thank you very much, Neeraj ji, Mohan Kumar ji, Lotmini, Mohit Gupta ji. Thank you very much. And अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, यूट्यूब वाले सेक्शन, यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, उस पर डालिए। Our office will try to respond to the queries to the extent possible, to the extent possible. So with this, I'm wishing each one of you अच्छा 99C भरिए, अच्छी फीस लीजिए, अच्छा काम कीजिए, डू द गुड वर्क, एंड दैट इज माय सजेशन। एंड विश ईच वन ऑफ यू ग्रेट सक्सेस in your professional acumen endeavors, whatever you're doing. So God bless all of us together. I hope I've done everything, but something left out, put in a comment box in my YouTube, which is getting uploaded. Thanks for watching, and thanking my internal team A to Z Taxcorp LLP also, specifically Mahima and Savita, for doing hard work back to back with me. कई जगह पे मैंने भी उनसे बात की कि भाई ये इंस्ट्रक्शन ऐसा क्यों। सो दिस इट इज सबका साथ सबका विकास। सो टीम वर्क विल गिव यू मोर फ्रूटफुल रिजल्ट्स। सो अकेले नहीं सोचना है या इसने कह दिया तो मानना है, नहीं मानना। डू इट together, and together we will make difference. Team is important than individual, so take team together, that is important one. So thanking each one of you.
Take care. Thank you very much.